Hello dear students, one more time welcome back to you all. Myself Ambujraj and finally we are back into our channel AR Foundation. So first of all, a very happy good morning, good afternoon and good evening to you all. So as you all can see, today we are going to continue our another topic. So here we can see part second for 10th class students, which is our today's topic, metals and non-metals. So we discussed part 1. There we saw many terms, many more topics concerned with metals and non-metals. But here we are going to continue our earlier topic by chemical properties of metals than non-metals. So without wasting our time, let's start our today's topic. But before that, as you all can see, here I have written the reactivity series of all metals. Here we can see potassium is the most reactive metal, and here we can see we took here gold as the least reactive metal. But here you can add platinum also after gold. So please look here. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold. So we are going to use this whole reactivity series when we will see the chemical properties of metals. So that's why earlier only I have drawn the overall reactivity series. So before that, if you are new to our channel, please subscribe the channel. और अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं आप तो ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा इस चैनल के. तो एक बात और कह देता हूं मैं कि इन दिस वीडियो we are going to see the complete chemical properties of metals and non-metals. Means that after this video you may not be having any doubt concerned with chemical properties. तो चलिए ये तो इंट्रो हो गया, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिएक्ट मेटल्स विथ chemical properties. Okay, chemical properties we are going to see today. So first what we are going to see today, first I am going to show you all the reaction of metals with oxygen. So here we can write reaction of M stand for metals plus oxygen of air. Oxygen. First we are going to see the reaction between metals and oxygen of our air. So as we all know that guys, in our surrounding सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन. Am I right? If yes, then please comment in the comment box section. तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है ना. तो सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है. तो ऑक्सीजन को पहले हम लोग ले चुके हैं, यहाँ पे रिएक्ट करा रहे हैं. तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ऑब्वियसली क्या है हमारा, एक नॉन मेटल है. तो चलिए देखते हैं. तो हियर वी कैन सी गाइस, व्हेनेवर metals react with oxygen, at that time they forms metal oxides. As I told you, metals oxides are basic in nature. They are basic in nature. How we can test whether they are basic in nature or acidic in nature? In order to check the metal oxides, we need to complete another reaction with basic oxide with water. At that time we will get one solution and we can apply that solution or we can use that solution to check whether it is base or acid. So by the help of litmus paper we can say. So आपको मैंने बताया है ABR मीन्स दैट एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है. अब जस्ट इसका पोज चलिए, बेस क्या करता है, रेड को हमारा ब्लू में चेंज कर देता है. तो अगर ये बेस होगा तो ये रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, सेकेंड वाला. सो हियर वी कैन सी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर विच टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. टिल नाउ अगर कोई डाउट है तो पूछते चलिएगा, आपको आंसर मैं देते चलूंगा. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक एनी मेटल.
कोई भी मेटल लीजिए, आसानी से समझना। तो चलिए सबसे पहले रिएक्टिविटी स्टेज को देखते हैं। तो क्यों ना ये वाला उठाते हैं, मेरा पोटेशियम। नाउ वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट पोटेशियम K plus O2. So we are going to react. So we can see here it is a type of ionic compound because metals and non-metals are available, and we know that whenever one of the element is metal and another one is non-metal, at that type of compounds are termed as ionic compounds. So इसका बेसिकली वैलेंसी इंटरचेंज करके हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। So क्या हो गया, K2O हो गया कि नहीं, दो इसका वैलेंसी, इसका 1 इंटरचेंज हो गया तो K2O हो गया। तो K2O हम लोग को मिल गया एंड वी नो दैट K2O इज बेसिक इन नेचर। कैसा होता है, बेसिक होता है। ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग, व्हेनेवर वी विल रिएक्ट दिस बेसिक ऑक्साइड विथ वाटर, एट दैट टाइम वी विल गेट वन सॉल्यूशन and with that solution we can check whether it is base or acid। तो कंफर्म है भाई बेसिक ऑक्साइड बेस ही ना बनाएगा, तो इतना तो डॉट क्लियर हो जाता है। तो अब आपको पता चलता है कि इन आवर नेचुरल सराउंडिंग दीज टू मेटल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव, पोटेशियम एंड सोडियम, एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विथ एटमॉस्फेरिक एयर दे आर केप्ट अंडर किरोसिन। याद रखिएगा ये सब टर्म, ये दोनों काफी रिएक्टिव होते हैं, इसी कारण से ये दोनों को किरोसिन में केप्ट किया जाता है in order to prevent its reaction with natural air और atmospheric oxygen से। So एक बात तो क्लियर हो गया कि ये दोनों काफी रिएक्टिव होते हैं। तो एक टर्म और आता है, एक एलिमेंट जो कि है लिथियम। लिथियम को आप लोगों ने देखा होगा, you might have seen your batteries of mobile phones, there we can see guys lithium Li-ion batteries or Li-ion batteries, those batteries which are made from lithium, वहां पे आपको पता ही चलता होगा। तो there we can see guys they are stored in kerosene with lithium too in order to prevent their reaction with atmospheric air। यहां तक कोई डाउट है? अब आपको क्या करना है कि सभी को रिएक्ट करा दीजिएगा, लेकिन आपको लास्ट में क्या पता चलेगा कि जो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं ना, ये सब ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ना के बराबर कहिए तो रिएक्ट करते हैं विथ ऑक्सीजन। आपको प्रॉपर दिख रहा है वहां तक? तो यहां से हम लोग इतने सारे टर्म्स को जान चुके हैं। अब चलते हैं कुछ अलग वाले टर्म्स या कुछ नए टर्म्स जो हम लोग को जानने हैं वो देख लेते हैं। तो टिल नाउ वी सॉ व्हाट आर द थिंग्स। पता चल गया हमें कि मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है व्हेनेवर मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑल्सो द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब एक टर्म आपको मिलेगा अल्कली। वी डिस्कस्ड अबाउट अल्कली गाइस इन बेस, in last chapter we discussed acid, base and salt. There I told you what alkali. What are alkalis? Can you tell me in the comment box section? So a type of base which is soluble in water is termed as alkali। तो देखिए अल्कली का फॉर्मेशन कैसे होता है, कब होता है, या कौन कौन से एलिमेंट हम लोग के अल्कली का फॉर्मेशन कराने के कैपेबल होते हैं। तो अपना बहुत बड़ा यही दोनों जो है ना रिएक्टिव वाले, यही दोनों को ले लेते हैं। चलिए तो अब आप देखिएगा बुक में, अगर आप इफ यू आर गोइंग थ्रू बुक और एनी अदर थिंग यू माइट सी 4 3 in order to balance or in order to make the reaction more suitable they are writing like that, but I will tell you in most simplest way जो आपके दिमाग में समझ में आए। आपको सिंपली क्या करना है, एक कंपाउंड बनाना है। अब अगर बुक के अकॉर्डिंग चलेगा तो लिखेगा 4I 7I, ये सभी छोड़िए, हम सिंगल एटम को ले रहे हैं, सिंगल एटम को रिएक्ट करा रहे हैं, आसानी से मेरा रिजल्टेंट मिल रहा है। समझने के लिए आपको याद रखने का जरूरी है बस इतना कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन सी Na plus O2, then we will get here what, Na2O, सोडियम ऑक्साइड और अनदर टर्म। बोलिए, देखिए सोडियम क्या है मेरा, Na है, Na का वैलेंसी कितना होता है 11 है तो 1 होगा भैया, ऑक्सीजन है 2 तो इसका भी 2 होगा, तो 2A हो गया, क्या क्रॉस बाउंडिंग कर दिए तो मेरा हल हो गया Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड कैसा है भैया, मेटालिक ऑक्साइड, बेस होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। सो Na2O को हम लोग रिएक्ट कराने जा रहे हैं विथ आवर वाटर, सो गेट in order to get a compound and we will see whether that compound is alkali और क्या बेस मिलते हैं कि नहीं। तो फटाफट से यही करते हैं, यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं सेकेंड रिएक्शन में Na2O plus H2O। Now let's react both of them. So here we can see after reacting these two
each with each other, we will get certain new result in term. क्या मिलेगा देखिए, NaOH मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा देखिएगा, Na के 2 एटम है, Na का 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 को बैलेंस करने के लिए 2 हमें NaOH लिखना पड़ेगा। अब क्या हमारे पास कोई रह गया है, तो हियर वी कैन सी O2 कैंसर, तो क्या हमारे पास कोई अभी भी टर्म बचा हुआ है? अब आप लोग से मैं कमेंट करके जानना चाह रहा हूं कि क्या मेरा कोई टर्म यहाँ पे लेफ्ट है, तो आपको पता चलेगा भैया यहाँ पे कोई भी टर्म लेफ्ट नहीं है। क्या कोई टर्म है? नहीं। सोडियम का 2 एटम है, सोडियम 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, यानी ये मेरा कंप्लीट फॉर्मेशन कर रहा है NaOH विच इज आवर बेस, एंड दिस बेस इज ऑल्सो एन अल्कली। अल्कली क्यों है? क्योंकि इट इज सोल्यूबल इन वाटर। अभी भी अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा। अब आपको मन में आ रहा होगा कि अल्कली का फॉर्मेशन कौन कौन से करेंगे, तो ये तो एसिड बेस एंड साल्ट में ही मैंने बता दिया था कि अल्कली का फॉर्मेशन कौन कौन से एलिमेंट करते हैं, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है जो करता है, या कम रिएक्टिव होता है, या क्या होता है। तो पहला पार्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आपको यहाँ से अगर कोई डाउट है तो मैं बार बार कर रहा हूँ, पूछते चलेगा, मैं बताने का अपना 100% देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अगला टर्म जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं ना। अब देखिए अगला टर्म जो कि इसी में बेस्ड है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन से। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो टिल नाउ वी गोट वन थिंग, वी गोट हियर मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स व्हिच आर बेसिक इन नेचर। बट क्या ये ऑलवेज होता है, क्या ये समटाइम होता है, या ये मॉडरेट होता है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या ऑलवेज मेटालिक ऑक्साइड बेसिक ही होते हैं या फिर एसिडिक भी होते हैं। कमेंट करिएगा, मैं बता देता हूं, यहां पर देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है गाइस। सो हियर वी कैन सी इन सर्टेन कंडीशंस certain elements are there which also forms non, or we can say acidic oxides. In mostly we can say metal react with oxygen to form metallic oxides which are basic in nature, but certain times metals react with oxygen to form acidic oxide, or we can say metallic oxides which are acidic in nature. बट ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट से, और वे एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो है एल्युमिनियम, जिंक, ये दोनों को हम लोग कहते हैं एक अलग एलिमेंट या अलग मेटल्स, जिनका नाम है क्या? एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। क्लियर है आप लोग? एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच शोस both properties of acidic as well as metallic। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आपको? एक मिनट होल्ड करिएगा। Here we are discussing about amphoteric oxides. So now we are going to check कैसे मेरा एसिडिक का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों करते हैं, ड्यूल नेचर का होते हैं, ठीक है। They also form basic oxide and also acidic oxides. First we are going to see basic oxide. So चलिए लेते हैं Al plus O2. Now we are going to react both of them. Aluminium 13 position, atomic number 13, so 2 8 हो गया 10, बच गए 3। So finally क्या मिला? Al2O3 मिलेगा कि नहीं? यानी क्या है ये? सोडियम एल्यूमिनेट है क्या? ये बताइए। ओ एल्यूमिनियम है, सॉरी। सो ये एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा? नेम पढ़ के बताइए। अरे जल्दी जल्दी रिएक्ट करिएगा, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा जी? देखिए Al2O3 है, Al2O3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बोलिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? मैं बार बार कह रहा हूँ, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट गो एंड आस्क, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि आप तो सिंपली रिएक्ट करा दिए Al2O3, हमारे बुक में हमारे भैया बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, वैसे बोल रहे थे, वो 4 Al लेते थे और बोलते थे 2LO3 होता है, यहाँ पे 4 लेते थे, यहाँ पे 2 रखते थे बैलेंस करने के लिए। सो ये तो आपको कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग सिखा दिया जा रहा है, लेकिन मैं भी आपको आसानी से बताता हूँ। ज़्यादा अभी बैलेंसिंग आपको पता ही है, बैलेंसिंग कहाँ करेंगे? जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि LHS एंड RHS इक्वल नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर भी तो इक्वल नहीं है, कैसे? हियर वी कैन सी 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, कैसे बैलेंस है? नहीं ना बैलेंस है। बट हियर वी टुक व्हाट? आवर आयनिक कंपाउंड,
एंड इन ऑर्डर टू शो जस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड वी आर नॉट गोइंग टू बैलेंस इट। बैलेंस करने का मन है तो आप करिए, कोई डाउट नहीं है। बैलेंस कैसे किया जाता है? हीट एंड ट्रायल मेथड, एज आई टोल्ड यू इन चैप्टर 1, आसानी से कर लीजिएगा। काउंट करिएगा, इधर एल्युमिनियम का 1 एटम है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 चाहिए, तो क्यों ना इसको 2 को हम 4 कर दें। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 लगा सकते हैं, इधर हम लोग 2 लगा सकते हैं, तो ये 2 2 4 हो गया। फिर आते हैं इधर, तो मेरा ये कितना हो गया? 2 हो गया, और यहाँ पे 6 हो रहे हैं, तो भैया ये भी बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपली 3 को और ऑक्सीजन को दे सकते हैं, तो इस यहाँ पे 3 एटम और दे देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, आप अच्छी तरह समझिएगा। ये ऑक्सीजन अभी 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के फॉर्म में, इसका एटोमिसिटी है 2, बट यहाँ पे 3 हम लोग और ऐड कर रहे हैं, तो 3 ये क्या एटम है? 3 मॉलिक्यूल है, बिल्कुल 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इंडिविजुअली हम लोग ले चल रहे हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन था, बट हियर वी मल्टीप्लाइड 3 मोर मॉलिक्यूल्स, सो फाइनली वी गॉट 6 मोर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो अभी मैं आपको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप बैलेंस करने के लिए सीख चुके हो। हमारा क्या टॉपिक है? शो कराना कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन रहा है कि नहीं। So from here we got Al2O3 aluminum oxide. So first case we are going to see, अगर ये बेसिक होगा एंड एसिडिक होगा, बोथ होगा, ठीक है, ये बेसिक भी होगा और एसिडिक भी होगा, तो हम लोग एक चीज पढ़ के आए हैं, whenever basic oxides react with water it forms base, acidic oxide react with water to form acid। तो क्यों ना एसिड बेस को रिएक्ट कराएं, और अगर हमारा कंपाउंड साल्ट मिल रहा है तो कंफर्म होंगे कि ये हमारा बोथ फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो पहले रिएक्ट कराने जा रहे हैं बेसिक ऑक्साइड को साल्ट वाटर के साथ, एंड फिर रिएक्ट कराएंगे एसिडिक ऑक्साइड को वाटर के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए आगे पूरा इस कंप्लीट प्रोसेस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग रिएक्ट कराने जा रहे हैं एसिड के साथ, एंड देन रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ। Wait. Suppose we are going to take, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है आपके वैम में? भी तो ये है HCl। HCl से रिएक्ट कराते हैं, कोई बात नहीं। अब रिएक्ट कराते हैं HCl Al2O3। भैया क्या बनेगा? सोचिए क्या बन सकता है? कुछ दिमाग में आया आपका? आ गया होगा। क्या आया होगा कि HCl में ये काफी एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, एंड Al2O3 हमारा भी यहाँ पे बेस का फॉर्म करेगा, तो यह एक साल्ट का फॉर्मेशन कराएगा। अब साल्ट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? तो पहला सोडियम को हम लोग एल्युमिनियम को कंसिडर करते हैं, तो एक हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, एल्युमिनियम क्लोराइड हो सकता है। एंड एक रिएक्टिव हमारा और क्या बच सकता है? वाटर बच जाएगा, तो क्यों ना एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कराएं। सो सिंपली फ्रॉम हियर वी कैन राइट Al2Cl। बट भैया ये मेरे को सही नहीं लग रहा, एल्युमिनियम क्लोराइड आप गलती बना रहे हो। तो जब ऐसी बात आती है तो फिर हम लोग वापस चले जाते हैं ओल्डर मेथड पे। अब इसे बैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि हमें करना है एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, एंड फॉर दैट वी नीड टू बैलेंस इट। लेकिन अगर ये वाला सिर्फ रहता तो बैलेंस ना भी करते तो आपको मार्क्स आ जाते। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, फर्दर जब रिएक्शन कराना है तो बैलेंस कर लीजिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। सो 2Al2O3 एंड HCl को भी फिर लाना पड़ेगा इसके फॉर्म में, तो इसके लिए हम लोग को 6 यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखिए Al2, ये 2 मेरे पास 4 हैं, तो ये अभी मेरे पास हाइड्रोजन के 6 हैं, क्लोरीन के भी 6 एटम्स हैं, बोथ के पास अभी 6 एटम्स हैं। यहाँ पे देखें तो मेरे पास एल्युमिनियम के पास 4 एटम है, यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया। बट क्लोरीन के पास मेरे कितने हैं? 6 हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे कितने गए हैं? 2 गए हैं, तो हमारे पास अभी 4 और बचे हुए। तो 4 को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं, 6 को बनाना है हमें, तो एक चीज हम लोग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? हम लोग 6 को फॉर्मेशन कराना है, तो यहाँ पे हम लोग 3 कर दें तो मेरा 6 हो जाएगा कि नहीं? 6 क्लोरीन एटम हो जाएगा कि नहीं? 3 2 जा 6, तो 6 एटम हो जाएंगे, यानी ये वाला मेरा बैलेंस हो चुका है। प्लस देखते हैं क्या कोई और टर्म बचा है। एल्युमिनियम एटम को ले लिया, सॉरी एल्युमिनियम एलिमेंट को कंसीडर भी कर लिया। हाइड्रोजन का यूज नहीं हुआ है, वाटर का यूज बन सकता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमारे पास 6 क्या है? 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और हमारे पास 6 एटम्स ऑफ क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये कोई एलिमेंट बन रहा है, सॉरी ये कोई कंपाउंड बन रहा है,
बेसिकली नहीं बन रहा है। ऐसा कौन सा कंपाउंड होता है? हम लोग को फॉर्मेशन कराना है वाटर का विथ ए प्रॉपर स्ट्रक्चर। सो ये वाला बन जाएगा। नहीं कैसे बना देखिए, 6 हाइड्रोजन के एटम, 6 है, बैलेंस हो गया। बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के पास 2 3 जा 6 हैं, बट हियर वी कैन सी हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। तो फिर 3 और 6 बैलेंस कैसे हुआ भैया? आप बताइए, आप बैलेंस होगा मेरा? अरे भैया बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? टिल ऑफ क्या कोई टॉपिक लगेगा? सोचो सोचो सोचो, एक टॉपिक लग सकता है, एक टॉपिक लग सकता है मेरा। क्या? होल एक बार कंसिडर करते हैं पूरे रिएक्शन को, तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक करके आ रहे हैं। अगर हम लोग इस इस एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रॉपर मेथड को देखें या प्रॉपर फॉर्मूले को देखें, सो मेरा यहाँ पे मिला था भैया 2Al2O3। तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए 2Al2O3 लिख दिए थे। लेकिन अगर हम लोग इसको रिवर्स फॉलो करें, इसको इरेज करें, तो भी ये मेरा वही एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। बट भैया 6 नहीं हो पाते हैं, मेरे पास एल्युमिनियम के 2 रहते हैं। तो फिर हम लोग को यहाँ पर से 2 को इरेज करना पड़ेगा, 2AlCl3 हो जाएगा। या फिर कहें तो हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं कि नहीं? बट हमें क्लोरीन के 6 बनाने, तो फिर ये नहीं होगा, यानी मेरा ये 2AlCl3 हो जाएगा। फिर भैया ये तो हमें सूटेबल नहीं लग रहा, कैसा कंपाउंड? ये तो कोई बन ही नहीं रहा। देखिए, जब भी कोई भी बड़ा रिएक्शन, ये बड़ा रिएक्शन तो है नहीं, बस आपको एक एक टॉपिक की ओर ले जाना। अगर आपको डायरेक्ट तो मैं लिख दूंगा आंसर, इसमें कोई समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे तोड़िएगा तो आपको मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा तो समझ में आता जाएगा। पहले कंसिडर करते हैं एक मेटल को, बिकॉज वी हैव टू फॉर्म हियर व्हाट, हमें फॉर्म कराना है एक साल्ट का फॉर्मेशन। क्यों साल्ट कराना? क्योंकि मेरा भी बेसिक कंडीशन में पहली वाली है, एंड बेसिक व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड्स दे फॉर्म साल्ट। तो पहले मेटल को उठाते हैं, तो मेटल एल्युमिनियम को हो गया। एल्युमिनियम के 2 एटम है, एल्युमिनियम के 2 एटम, बहुत बढ़िया। दूसरा लेते हैं कोई नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हम क्या क्या ले सकते हैं? या तो फिर ऑक्सीजन को ले सकते हैं या फिर क्लोरीन को ले सकते हैं। बट ऑक्सीजन के साथ ही पहले से ही था ऑक्साइड बनाए हुए, तो दूसरे कंसिडर में हम लोग क्या ले रहे हैं? क्लोरीन को ले रहे हैं। सो यहाँ पे क्लोरीन का 6 एटम है, तो ये 2 और 3 6, यानी ये वाला बैलेंस है। सेकेंड वाले देखते हैं तो 3H2, यानी ये वाला भी मेरा बैलेंस है। यानी वी गोट हियर 2AlCl3 प्लस 3H2, एंड हियर वी कैन सी ये मेरा क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड कैसे क्लोराइड हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक मेटल्स रिएक्टिंग विथ नॉन मेटल, एंड व्हेनेवर मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन दे फॉर्म्स क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सॉरी स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम क्लोराइड। यहां पर कोई डाउट हुआ? मैंने थोड़ा टाइम लिया आपको समझाने के लिए। डायरेक्ट आंसर लिखूंगा तो आपके दिमाग में ज्यादा बातें नहीं आएगी, धीरे धीरे चलिएगा तो पूरा बातें कंसिडर हो जाएगी। अब दूसरी बार शो करना हमें इसको नॉन मेटल एसिड कंसर्न करना। बेसिक ऑक्साइड कंसर्न कर लिए तो हम लोग एसिड लिए, अब इस बार एसिड ही इसको कंसर्न करते हैं। तो भैया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? बताइए, आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा। हम लोग क्यों ना NaOH को ले, NaOH को हम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं। अब माने भी क्यों ना, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और मेटल से तो बना है, सोडियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, भैया मजबूत तो होगा। फिर वही लेते हैं Al2O3 प्लस NaOH। चलिए, दिस टाइम वी आर गोइंग टू शो और वी आर गोइंग टू कंसीडर Al2O3 एज एसिडिक। ठीक है, एसिडिक इसे मानते हैं, इससे हम लोग बेस तो ले ही चुके हैं। तो बेस एंड एसिड कैसे रिएक्ट होते हैं? फॉर्म करते हैं साल्ट के। तो इस बार कौन सा साल्ट बनेगा? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो मेटल्स हैं, एक सोडियम एक एल्युमिनियम। तो भैया कैसे बनेगा? तो दिस टाइम वी कैन सी हम लोग को बनाना है एसिडिक वाले को बेस के कंसर्न में करना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो मेटल है इसको इस साइड के फॉर्मेशन में लाइए और ये अले को इस साइड के फॉर्मेशन में लाइए। आशा करता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो चलिए इसे साथ में मिलकर बनाते हैं।
चलिए हम लोग के पास अभी क्या क्या है। टिल नाउ वी हैव Al एज मेटल, Na एज मेटल, O है मेरा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, यानी ये 4 एलिमेंट्स मेरे पास हैं। साथ में स्लो मोशन में बताऊंगा, समझ में आपको आ जाना चाहिए। चलते हैं इसका फॉर्मेशन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। पहले केस में हम लोग कोई एक भी एलिमेंट को रख लेते हैं। तो मान के चलिए ज़्यादा रिएक्टिव Na है तो Na को मैं ले लेता हूँ। Na है फिर Al भी हो जाएगा, क्योंकि हमें बनाना है एक साल्ट का फॉर्मेशन। एंड साल्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कराने के लिए हमारे पास मेटल का नॉन मेटल के साथ एक बॉन्ड रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हियर वी आर गोइंग टू रिएक्ट बोथ ऑफ देम। चलिए वापस रिएक्ट कराते हैं। तो टिल नाउ हम लोग को पता चल गया है क्या, एक अल्युमिनियम है, एक सोडियम है, ऑक्सीजन है एंड एक हाइड्रोजन है। हम लोग को फॉर्म कराना है एक साल्ट का, एंड एक हमें RHS कोई और भी चीज़ मिलता है नहीं मिलता है ये चेक कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जब भी साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो RHS में तो H2O मिलता है। तो अब H2O को ऐसे लिख लीजिए, ये तो एसिड बेस एंड साल्ट का टॉपिक है। तो H2O को अब हम लोग निकाल देते हैं। तो H के पास 1 है भैया, यहाँ पे 2 दे दियो आप, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाओ, क्योंकि बैलेंस नहीं ना होगा, 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ही हाइड्रोजन है तो फिर बैलेंस नहीं हुआ। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 2 को, अब 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑब्वियसली इधर भी आ गया। अब आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पे क्यों नहीं लिखे 2, देख लेते हैं, आगे भी मेरा जरूरत पड़ ही जाएगा। सो भैया 2Na को करते हो तो इधर भी Al के साथ लगाना पड़ेगा। तो आपका मैं बात मान लेता हूँ, इधर लगा देता हूँ 2, बट ऑक्सीजन का मेरे पास कितने बचते हैं, 1 उधर चले गए तो मेरे पास 3 अभी भी बचे हुए, 3 इधर भी है। सो Na2AlO3 प्लस H2O। देखते हैं क्या ये मेरा बैलेंस है, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन बट 1 ऑक्सीजन एंड 3। तो टोटल कंसिडर करें तो मेरे पास LHS में 5 ऑक्सीजन के एटम है, बट RHS में 3 1 4 है। तो 2 मेरे पास कहाँ गए भैया, 2 तो मेरे पास नहीं है, 4 है, 1 मेरे पास नहीं है। तो फिर 1 को कहाँ से लाया जाए, आपके माइंड में अब आ गया होगा डॉट। और इसी डॉट को फुलफिल करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग एक चीज अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग को लाना है H2O। H2O को लाने के लिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा पूरा टर्म के साथ 2 एटम जुड़ गया। सोडियम के साथ भी 2 एटम आ गया। अब सोडियम के साथ 2 आ गया तो सोडियम को हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो एल्युमिनियम को भी 2 देना पड़ेगा। तो ये 2 तो है इसके पास, तो फिर काहे का हम लोग गलती कर रहे हैं, इससे 2 क्यों ना यहाँ पे दे दें। अब देखते हैं, ये वाला 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया, इधर 1 है यानी 1 बाकी, और ये 3 3 1 4, ये 2 और ये 3, मेरे पास अभी भी कितने बचे हुए हैं, 2 और बचे हुए। तो अब वो कैसे मिलेगा, डॉट 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 सोल्व हो गया। अगर इसे O2 कर दे तो 2 2 4 ऑक्सीजन के एटम एंड 1 ऑक्सीजन के एटम, यानी ये मेरा पूरी तरह से बैलेंस्ड है। एंड आफ्टर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन वी गोट हियर आवर वैल्यू, ये मेरा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट इज अनदर साल्ट कंपाउंड एंड वी गोट हियर वाटर एज अनदर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। पहली बार रिएक्ट कराया तो हम लोग को मिला क्या, एसिड की तरह वर्क किया, ये सॉरी पहली बार बेस की तरह, फिर सेकेंड टाइम ये कैसा हुआ, एसिड की तरह वर्क किया। बेस के साथ था तो एसिड को रिएक्ट कराए थे, बेस की तरह हुआ तो एसिड की तरह रिएक्ट करा दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यू कैन ऑल्सो डू वन अदर थिंग, जिंक भी है तो जिंक को भी आप लोग को करके देखना। 2 कंपाउंड हुआ है, अभी वीडियो कितना देर का हुआ है, माय गॉड 29 मिनट्स, माय गॉड। नाउ फर्स्ट ओनली वी आर सीइंग reaction of magnesium or metals with oxygen. You all guys tell me what will I do, because अगर समझाऊंगा नहीं, टाइम ड्यूरेशन पे ले जाऊं कि मैंने लिख दिया भैया ऑक्सीजन मेटल चलो 2 3 4 5 6 डायरेक्ट बैलेंस करके लिख दिया 2 3 Na2O HA2O जो भी लिख दूं,
तो आप लोग समझिएगा नहीं, मैं अपना टाइम पास कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। दैट्स वाई आई ऑलवेज गो विथ सोल्विंग योर डाउट्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको जानना चाहिए था, इसलिए बताया। सो यहाँ पर वीडियो को छोड़ रहा हूँ। सो हर वीडियो मेरा अप्रोक्स 30 मिनट का होता है, तो इस वीडियो को भी हम लोग 30 मिनट पे एंड कर रहे हैं। बट हियर वी कैन सी गाइस, अभी पहला ही चल रहा है। अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ है, एसिड के साथ रिएक्ट कराने हैं मेटल्स को, हमारे वाटर के साथ रिएक्ट कराने हैं, फिर साल्ट कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराने हैं, एंड लास्ट में क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराने बाकी है। तो आप लोग कंसिडर करिए कितना बड़ा टॉपिक होगा। बट डोंट वरी अबाउट वीडियोस, ये सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट अप्रोक्सीमेटली 10 पार्ट तक जाएंगे, ठीक है। मैं अभी फाइनल बोल देता हूँ, आई विल मेक 10 पार्ट्स ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर। एंड कार्बन कंपाउंड के तो 15 होंगे ही, 15 कार्बन कंपाउंड और 10 ये। आपको पर वीडियो को देखना है, मैं लिख दूंगा ऊपर कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इसमें लिख दूंगा थंबनेल में। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो कार्बन कंपाउंड आएगा ना, वे आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि पर डे आपको वो वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you learn something from this video, if you learned something from this video, how to balance any equation, how to solve or which what are amphoteric oxides, then please go and subscribe the channel, press the bell icon। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।